it reminded me, it's just like I was padded up at the backstage with my bat, and as I walked out to bat, it reminded me of the clap in the stadium. So it did two things. First, it put a lot of pressure on me कि रन बनाने हैं, क्योंकि नहीं तो वापस जब आएंगे ना तो वो क्लैप्स अलग हो जाते हैं. So thank you so much for having me. बहुत खुशी हुई आप लोगों से दूर से मिलके. पास तो अभी तक पहुंचे नहीं. बहुत खुशी हुई दूर से मिलके. मुझे पता चला कि आप लोग इंडिया के हर कोने से आए हैं. तो बहुत बहुत शुक्रिया आज आने के लिए यहाँ पे. Extremely grateful and extremely honored that you've taken all the trouble to come from wherever you are for this event. You're a very important part of the Class Plus family, probably the most important part. और मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि जब कोई टीम आगे बढ़ता है, मैं भी किसी टीम का कप्तान था, मेरे भी कभी कोचेस हुए हैं, तो ये सब ना एक टीम गेम है. जब आगे बढ़ते हो, कोई चीज़ जब आगे बढ़ती है, और मैं आपके जो यहाँ पे जो आपके जो दो ओनर्स नहीं, दो कोलीग्स बोलूँगा, मुकुल और भास्वत से मैं बात कर रहा था यहाँ आने से पहले कि ये आपकी ब्रांड और आपकी ये जो एसोसिएशन है वो कैसे चल रहा है. कितने कोचेस, कितने टीचर्स आपके साथ जुड़े हैं, कितने यंग स्टूडेंट्स आप पिछले 2-3 साल में आपके साथ जुड़े हैं. तो नंबर्स देख के मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा. और मैं ये कहता हूँ कि ये सब होते हैं आपके एफर्ट्स के लिए. It is because all the efforts you put in and all the time you give to yourself, the teachers who are here, and I presume majority of them here are teachers, isn't it? तो आप जो और हर किसी की जिंदगी में आपके टीचर्स के सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है. क्योंकि मैं समझता हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि जब ये कोई भी लड़का या लड़की छोटा होता है, वो सबसे ज़्यादा समय अपने स्कूल और अपने टीचर्स और अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे ही बिताते हैं घर से. सो एज मच एज योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली हैज़ and a contribution to your life and to your career, your teachers actually have more. Your teachers actually make you understand, learn and teach life more than even your family. And I was young, I'm still young, but I was younger. I was younger few years ago, and I can tell you, whatever I have achieved, wherever I have finished in my professional life as a cricketer, my coaches, my teachers had the biggest influence in my life. I studied in St. Xavier's College in Calcutta, St. Xavier's School, and in those days, online education, edtech platforms did not exist. So we had to go to school and college and learn, study, get educated. And the best part or the worst part of our careers when we were young was that technology was not as developed and as improved as it is in the modern day. So we got a lot more time to go to college. We got a lot more time to spend time with teachers. Not only study, not only pick the mathematics, geography, literature, history books, but at the same time got to play the sport. There was no mobiles. So just like as I see my lovely daughter spending a lot of time on a mobile, trying to see the world, we did not have that, and that probably gave us more time to play the sport, to study and be where we are today. So for me, I still remember when I talk about teachers, and I'm still in touch with them. Both of them have grown older. One is in the late 70s and one is in the late 60s, and I still meet them. They come and see me. आके मिलते हैं मेरे साथ. मैथ्स और मुझे बंगाली पढ़ाते थे. जब भी उनके साथ में अभी मिलता हूँ तो आँख में ना वो रोशनी आ जाती है कि यार इनके साथ तो पूरी ज़िंदगी बिताया आपने. आप जब फुटबॉल खेलते थे, मैं जब क्रिकेट से पहले स्कूल में पढ़ता था, मैं बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता था. तो यही टीचर्स मुझे दिन में 12 से 2 बजे तक मैथ्स, इंग्लिश, बंगाली पढ़ाते थे. और वही टीचर्स 3 बजे के बाद जब छुट्टी होता था और फुटबॉल खेलने का मौका मिलता था, तो यही टीचर्स आपके साथ वो लाइन पे खड़े होके आपके लिए तालियां बजाते थे. तो ये आपकी सिर्फ पढ़ाई, आपकी एजुकेशन की डेवलपमेंट नहीं करते हैं, ये आपकी पूरी कैरेक्टर, आपकी पूरी जिंदगी की डेवलप करते हैं.
और मैं उनके नाम आपके सामने कहना चाहता हूँ। एक है आनंद मजुमदार जो मैथ्स पढ़ाते थे हमें, और एक था मिस्टर समाजपति, वो धोती पहन के आते थे ना, पुराने दिन की टीचर, बंगाली पढ़ाते थे हमें, और धोती और कुर्ता पहन के आते थे, और सबसे ज्यादा चिल्लाता था बाउंड्री लाइन पे। जब मैं बॉल हाफ लाइन में, तब क्रिकेट नहीं खेलता था, जब बॉल हाफ लाइन पे पकड़ के दूसरे गोल की तरफ जाता था स्टूडेंट्स के साथ, वो सबसे ज्यादा शोर मचाते थे कि गोल करने। और वही 12 बजे जब मैं होमवर्क करके नहीं आता था, मुझे कहता है कि चलो क्लास के बाहर निकलो, नहीं तो तुम कल होमवर्क करके फिर नहीं आओगे। तो ये डेवलपमेंट देते हैं आप लोग, ये जिंदगी बनाते हैं आप लोग यंग स्टेज में। और किसी भी स्टूडेंट का, मैं भी स्टूडेंट था एक दिन, और डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट लोगों का स्टूडेंट अब बनते हो, डिफरेंट टीचर्स का स्टूडेंट बनते हो, ये आपके साथ जिंदगी भर रह जाता है। और जितने भी बड़े आप बन जाओ ना, जब आपके टीचर्स, आपके कोचेज आपके घर में आते हैं, तो एक अजीब सा वो सेटिस्फैक्शन फीलिंग होता है यार कि इस आदमी के साथ जिंदगी गुजारा है मैंने। सो फॉर मी द कोचेज, योर टीचर्स एक्चुअली हेल्प इन करियर बिल्डिंग मोर देन एनीबॉडी एल्स। जब बड़ा हुआ, जब क्रिकेट खेले देश के लिए, जब मेरे को अभी भी याद है क्लास 10 पास हुआ, तो मेरे पिताजी ने कहा कि तू बहुत शरारती है, तू घर में बैठा रहेगा तो सबको तंग करता रहेगा, चल मैं तुझे क्रिकेट में खिलवा देता हूँ। कोचिंग कैंप में डाल दिया। उससे पहले फुटबॉल ही खेलता था, तो कोचिंग कैंप में डाल दिया। तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि एक मौका मिला घर से भागने का, क्योंकि जब भी घर में आ तो माँ किताब दे देती थी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और मैथ्स की, पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार ये इससे तो ज्यादा अच्छा है कि तुम क्रिकेट में ही लगे रहो, 3 घंटा क्रिकेट खेल लो, 2 घंटा माँ को बोलो कि टीचर्स जो कोचेज है आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं, आपको भगा रहे हैं, तो जब आते हो थक जाते हो तो माँ थोड़ा सा पढ़ाई करके सुला देगा। तो मुझे अभी भी याद है, जब मैं उस समय क्लास 10 पास किया, तो 3 महीने छुट्टी थी बोर्ड एग्जाम्स के बाद, तो मेरे पिताजी कहा कि चलो तुम ट्रेनिंग करो। अशोक मुस्तफी सर थे, जो अभी है नहीं इस दुनिया में, उनको बोले कि आप इनको क्रिकेट खिलाओ, इनको थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाएगा। तब पता नहीं था कि आगे देश के लिए कभी खेलेंगे। तो उनके पास गया, तो 1 महीना 1.5 महीना प्रैक्टिस करता गया, अच्छा लगता गया। वो इंस्पायर करते थे कि ऐसे खेलना है। उस समय इंडिया वर्ल्ड कप भी जीता 83 में, एग्जैक्टली 83 जब वर्ल्ड कप जीता इंडिया, तो उसी से किया कि अगर कपिल देव गावस्कर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अगर वो देश को आगे ले जा सकते हैं तो हम भी देश को आगे ले जा सकते हैं। तो फिर गेम शुरुआत हुई, फिर अलग अलग कोचेस मिले, मुस्ताफी सर मिले जो आपको फ्रंट फुट, बैक फुट, कवर ड्राइव ये सब खेलने सिखाया। फिर बड़े स्टेज पे गए, अंडर 15, अंडर 19। पहली बार जब गावस्कर और कपिल देव से मिला, मुझे अभी भी याद है, जब व्हेन आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया जब गए ना 1992, छोटा सा 17 ईयर ओल्ड आई वाज, एंड जैसे ही फ्लाइट में उतरे तो यहाँ गावस्कर दिखे, वहाँ कपिल देव दिखे, वहाँ अजहरुद्दीन दिखे, वहाँ पे छोटा तेंदुलकर दिखा। तो थोड़ा तो मुझे वो भी 17 था, हाइट में भी छोटा, उम्र में भी छोटा, 17 साल का था, बट ऐसा नहीं लगा कि ये 30 टेस्ट खेल चुका है तब तक। तो जब गए फ्लाइट में चढ़े, तो ऐसा लगा कि यार ये कहाँ पे आ गए हैं, इतने बड़े लोग के बीच में अभी तुमको मौका मिला है कि तुम खेल पाओगे कि नहीं। तो फिर मुझे अभी भी याद है, जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो हमारा कोच था अब्बास अली बेग, बहुत वेल मैनर्ड और अच्छे इंसान थे। तो पर्थ में पहुंचे पहले दिन, तो होटल में पहुंचे तो ऐसा लगा था कि आई एम लॉस्ट इन विल्डरनेस, कहते हैं ना, कि इतने बड़े बड़े लोग जहां से देखो तो एक लेजेंड उतार रहे हैं, कभी वेंगसरकर, कभी अजहर, कभी गावस्कर, कभी कपिल देव। तो मैंने कहा इनके साथ झेलेंगे कैसे। तो फिर अब्बास अली बेग ने कहा कि तुम इनसे सीखो, तुम ड्रेसिंग रूम में जब रहोगे देखो ये कैसे बड़े बनते, कैसे प्रिपेयर करते अपनी मैच के लिए, अपने परफॉर्मेंस के लिए, और उससे सीखो। तुमको शायद इतना मौका नहीं मिलेगा इस सीरीज में, क्योंकि तुम 17th 18th नंबर हो, तो जो बड़े प्लेयर्स है वो खेलेंगे, बट ये सीरीज तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मुझे अभी भी याद है, एक मैच खेला था पूरे 3 या 4 महीने में ऑस्ट्रेलिया। एक समय ऐसा लगा था कि यार प्रैक्टिस में ना बैट लेके जाएंगे नहीं, क्योंकि मौका तो मिलेगा नहीं, तो जूते उठा के लेके जाओ, स्पाइक्स और बॉलिंग डालते रहो, सुबह से शाम तक बॉलिंग डालते रहो। तो उस तरीके से अपनी जिंदगी शुरू हुई। और उसके बाद 4 महीने बाद 4 साल खेले नहीं, 92 से 96 तक।
तो वहाँ पे भी जो कोचेज़ हैं ना, उन्होंने बहुत बहुत हेल्प किया अपनी करियर प्रिपेयर करने का। क्योंकि जब आप रिजेक्टेड हो जाते हो यहाँ पे, आप लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसे हुआ होगा कि बहुत समय आपको लोग रिजेक्ट कर देते हैं। आप जाके इंटरव्यूज़ देते हो, आपको नौकरी चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको कॉलेज में इंटरव्यू चाहिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स में सीट चाहिए, वहाँ आप रिजेक्टेड होते हो। तो वो जितना दुख आपको देता है उतना ही आपको मौका देता है कि आपको एनहांस करने का, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी एबिलिटी सब एनहांस करने का। मुझे अभी भी याद है 92 से 96 तक जब मैं बाहर था, तो मैं घूम घूम के देश के हर कोने में रणजी ट्रॉफी खेलने जाता था, वनडे क्रिकेट खेलने जाता था, डोमेस्टिक मैचेस खेलने जाता था। फिर जब 96 में वापस आया ना, 96 में जब वापस आया, एक अलग खिलाड़ी, एक अलग इंसान बन के वापस आया। क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि 92 में जब खेले तो थोड़ा जल्दी मिल गया था देश के लिए खेलना, उसके बाद निकाल दिया गया। उसके बाद 4 साल हर जगह घूमते रहे, क्रिकेट खेलते रहे, और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और जब 96 में वापस आए इंग्लैंड में, तो वही टैलेंट था, वही बाएं हाथ का बल्लेबाज था, लेकिन दिमाग अलग था, दिमाग की सोच अलग थी, दिमाग की जो कम्पिटिटिवनेस है, जो कहते हैं ना कि लगे रहो, वो चीज़ अलग हो गया था एज ए खिलाड़ी। और 96 में जब पहली बार टेस्ट खेले, 100 बनाए लॉर्ड्स में, आपको पता होगा। पहला टेस्ट में 96 में इंग्लैंड के सामने 100 बनाया, उसके बाद फिर दूसरा टेस्ट में 100 बनाया नॉटिंघम में, ट्रेंब्रिज में, और उसके बाद से फिर जिंदगी बदल गई। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, यार जब तुम्हें कोई रिजेक्ट करता है, जब तुम्हें कोई दूर फेंक देता है ना, वो एक अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए, एक अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने का। क्योंकि whenever you get rejected as an individual, obviously you feel sad. I felt sad in 92 and I did not know whether I would play again in 96. तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे और लाइफ में ऐसा कुछ गोल नहीं था। और कभी कभी ना हम एज एन इंडिविजुअल वी गेट टू एनग्रॉस्ड इन गोल्स इन लाइफ कि यार तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी बनने हैं, यार टाटा जैसे बिजनेसमैन होने हैं, यार इसके जैसा टीचर बनना है, उसके जैसा स्टूडेंट बनना है। तो जब भी आपके दिमाग में ये ऐसे सोच आते हैं ना, तो आपकी लाइफ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, आपके जो सोच है, आपके जो आगे बढ़ने की एबिलिटी है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और मैं वो 92 से 96 जब मेरे पास कोई चारा नहीं था और मुझे सिर्फ खेलना ही था कि जाके खेलो, रन बनाओ, पता नहीं आगे क्या होगा, उससे एक अलग फ्रीडम आ जाता है सोच में, उससे एक अलग तैयारी हो जाती है दिमाग में। और अभी जब मैं मुकुल और भास्वत से मिला, तो मैंने उससे पूछा कि यार और बाकी तो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तुम उसके साथ कैसे कम्पीट करते हो? तो उन्होंने कहा कि यार हम अपने काम करते हैं, हम अपने तरीके से बड़े होने की सोच में होते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है दुनिया में, क्योंकि अब अगर आप 1000 लोगों को देखते रहोगे ना, तो आपकी सोच उसी में रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। वो जो ओपननेस है, वो जो एक मैग्नीट्यूड है सोच का, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। आप सोचते हो कि यार इसके तरह ही बनना है, जबकि आपके पास शायद एबिलिटी है कि उससे बड़ा बनने का। तो अपनी स्टैंडर्ड्स अपने को ही सेट करना। यू हैव टू क्रिएट योर ओन स्टैंडर्ड्स रादर देन ऑलवेज measuring, always judging yourself with others. I'll tell you, I went through a small phase in the year 2000 जब मैं इंडिया का कैप्टन बना, और देश के वर्ल्ड के हर जगह बड़े बड़े प्लेयर्स होते थे। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन, वेस्ट इंडीज़ के ब्रायन लारा, और अभी तो वेस्ट इंडीज़ टीम बनाने में मुश्किल हो जाती थी, उस समय आउट करने में मुश्किल हो जाता था। कभी ब्रायन लारा आता है, तो कभी चंद्रपॉल आता है, तो कभी हूपर आता है, तो एक से बढ़कर एक ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया में हेडन, लैंगर, मुझे अभी भी याद है उस ऑस्ट्रेलियन टीम में हरभजन सिंह ने मुझे कहा, यंग हरभजन सिंह 2001 में, कहता है तब मुझे सर करके बोलता था। मैंने कहा सर नहीं, गांगुली बोलो। कहता है सर सबको तो आउट कर दिया, अभी 7 नंबर पे वो गिलक्रिस्ट आ रहा है। मुझे अभी भी याद है वो ईडन गार्डन्स में जब हम वो टेस्ट मैच जीते 2001 में, मुझे अभी भी याद है चौथे दिन कि टेस्ट मैच जीतने के समय में एक स्टेज पे पहुंचे, तो मुझे वो छोटा सा लड़का आके कहता है सर इतने विकेट ले लिए, लेकिन अभी गिलक्रिस्ट आ रहा है, इसको भी तो आउट करना पड़ेगा।
तो मुझे अभी भी याद है 2001 में, एंड आई वेंट थ्रू दैट पीरियड व्हेन आई वाज ट्राइंग टू रेज माय बार विद एवरीबॉडी। अगर हेड इन 100 बनाता था तो मैच से पहले मैं ये सोचता था यार कल मुझे भी 100 बनाना है, क्योंकि वो बना रहा है तो मुझे बड़ा प्लेयर बनने का है, तो मुझे भी 100 बनाना है। बट उस एक साल मैंने सिर्फ एक 100 बनाया, क्योंकि दिमाग थक जाता था सोच सोच के कि दूसरा क्या करे। तो मैंने एक साल के बाद सोचा कि ये सब सोचना ही नहीं है, जाके खेलना है, जो होगा होगा। 800 बनाया उस साल। तो ये सोच बहुत जरूरी है आपके दिमाग में कि अपनी डेवलपमेंट, अपनी कोचिंग, अपनी जो ब्लॉसमिंग है वो अपने आप ही होना चाहिए, और हर समय किसी के साथ उसको आप कंपेयर करके आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पे टीचर्स हैं, यहाँ पे जो मेरी जिंदगी में मैं कोचेस कहता हूँ, ये लीडरशिप ट्रेनिंग भी बहुत देते होंगे आप यंग स्टूडेंट्स को, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ करियर हैपेंस ओनली नॉट ओनली व्हेन यू just become good with books, not only when you just become good with education, but it happens over a career development. And जब आप students के जो आपके जो टाइम होते हैं पढ़ाई का, डिग्रीज का, उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो आपकी डिग्री, आपके पढ़ाई, आपके नंबर्स के साथ आपकी लीडरशिप क्वालिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे उन्होंने कहा कि आपके साथ कोचेस हैं, टीचर्स हैं, आप बताएं कि आपकी ज़िंदगी में कोचेस का क्या इन्फ्लुएंस है। मैंने कहा कि मुझे लीडरशिप का बोलने का मौका मिलेगा। कहता है हाँ ज़रूर, आप लीडरशिप के बारे में बोलिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ कोचेस और टीचर्स नहीं, वो पढ़ाई नहीं, सिर्फ बुक्स नहीं, वो किताबें सिर्फ नहीं, आपकी ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे जो हाँ पे हाँ मिलाएगा, जिसको आप पूछेंगे ना अरे यार तुम्हारा मेरा काम अच्छा हुआ, 10 लोग मिलेंगे हाँ हाँ बहुत अच्छा हुआ, बट 2 मिलेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि यार यहाँ पे आप थोड़ा ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। आपको उसी लोग के साथ जाना है। लाइफ में यस मैन नहीं चाहिए, लाइफ में यस मैन नहीं चाहिए, लाइफ में वैसे आदमी साथ चाहिए जो आपको हमेशा ना एक रियलिटी चेक देता है कि अगर आप अच्छे हो तो हो, अगर आप अच्छे नहीं हो तो आपको सुनना जरूरी है कि आप अच्छे नहीं हो, तभी आपका डेवलपमेंट होगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं देश के लिए इतना समय तक कप्तानी किया है, 6 साल। बाल तो चले गए, बाल सफेद हो गए, बट जो उसके साथ मिला है कि जो लीडरशिप क्वालिटी मिला है ना, कि जब सिचुएशन डिफिकल्ट हो, जब ग्राउंड पे आप उतरते हो ना, लोग मुझे कहते हैं कि यार क्या फीलिंग है। मैंने कहा जब पहली बार मैंने टेस्ट खेला और जब पहला विकेट गिरा, मैं पैड पहन के बाहर बैठा हुआ था, तो पहली बार जब ओपनिंग बैट्समैन आउट हुए और आपका बारी आई, जब मैं ऐसा खड़ा हुआ ना, तो ऐसे पैर से छाती तक एक ठंडा सा हवा गया। आप सबका होता होगा कि यार अब तेरी बारी आई है, अगर तूने गलती कर दी तो जिंदगी भर ये बारी नहीं मिलेगी। और ये सबके साथ होता है। तो इसीलिए लीडरशिप का ट्रेनिंग सबसे जरूरी होता है आपकी जिंदगी में, क्योंकि ऐसे मौके पे आपकी जो रिएक्शन है उस मौके के ऊपर, वो बहुत जरूरी होता है। तो मुझे किसी ने कहा कि यार तुम इतने फास्ट बॉलर्स खेले हो, तुमने शोएब अख्तर खेली है, ब्रेट ली खेला है, एलन डोनाल्ड खेला है, पहले तो पूछा सबसे तेज कौन था। मैंने कहा सबसे तेज शोएब अख्तर था। मैंने कहा तेज बॉलर या तेज हाथ घुमाने वाला? तो मैंने कहा नहीं, शोएब अख्तर सबसे तेज था। तो मुझे कहता है तो जब अब वो कीपर और फास्ट बॉलर के बीच में जब आप खड़े रहते हो तो आपको क्या लगता है जब तेज बॉलर आता है? मैंने कहा आपकी जिंदगी में 2 चीज हो सकती है, आप ऐसे खड़े हुए और आपके पैर हिल रहे क्योंकि इतनी तेज डाल रहा है, कहीं छाती वाती में बॉल लगा तो सीधा ऊपर। और दूसरा सोच हो सकता है कि जैसे आप खड़े हुए और वो भागना शुरू किया तो आपके दिमाग में ये चलना जरूरी है, तो लगा क्या होगा, मरेंगे ना, खेलना है। आप देखना 10 में से 9 बार आपके बॉडी में बॉल लगेगा ही नहीं। और अगर आप ऐसे खड़े होकर सोचे ना कि अब तो लगा, वो जरूर लगेगा। हाँ। तो
आगे जाने में ये सोच बहुत जरूरी होता है। लीडरशिप में मैं हमेशा कहता हूं कि लीडरशिप में पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी होती है। एक तो लीडरशिप में सबसे बड़ा चीज होता है टीम बिल्डिंग, क्योंकि आप यहाँ पे इतने लोग हैं और मैं जो क्लास प्लस के मेरे दोस्त हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ यार तुम्हारे लिए वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपके जो टीचर्स है आपके साथ। सो टीम बिल्डिंग होना बहुत जरूरी है। मैं छोटे से शब्द में आपको कहूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है। मुझे यहाँ कहा गया है कि अवार्ड्स देने हैं तो आप 20 मिनट में खत्म करना। मैंने कहा थोड़ा सा और टाइम दे दो। तो लीडरशिप में मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आइडेंटिफाई करना टैलेंट को, कि कौन सा टैलेंट आपको आगे लेके जाएगा। उसके बाद जब आपने टैलेंट को आइडेंटिफाई किया, वो फियर ऑफ फेलियर आपके दिमाग से निकलना है, जिसके बारे में आप बोल रहा था कि जब आप खड़े हुए आपके दिमाग में दो सोच होगा और वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का है। आप खड़े हुए आपको लगेगा, दूसरा सोचे कि यार लगेगा तो मरेंगे और क्या होगा, खेलना ही है। ये बहुत जरूरी होता है फियर ऑफ फेलियर में। और जब मैं कप्तान बना देश का तो मुझे कहा जाता था कि बहुत यंग खिलाड़ी उस समय आगे बढ़े, हरभजन सिंह हो, जहीर खान हो, वीरेंद्र सहवाग हो, MS धोनी हो, वो देश के लिए आगे खेले। तो सबसे मैंने एक चीज उनको कहा कि यार तुम डरना मत, तुम फेलियर का बारे में मत सोचना, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं, और जब मैं भी यंग खिलाड़ी होता था तो मेरे दिमाग में ये था कि यार बड़ा प्लेयर बनना है, सक्सेसफुल प्लेयर बनना है, जिंदगी बनना है, सोसाइटी में पहचान बनानी है। तो क्या होता है ना, जब व्हेन यू थिंक ऑफ ऑल दिस यू आल्सो थिंक कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। सबके दिमाग में होता है। जब आप अपनी कोचिंग क्लासेस शुरू करते हो, इतनी इन्वेस्ट करते हो, इतने समय देते हो, आपको लगता है कि यार अगर अच्छे स्टूडेंट्स नहीं मिला तो क्या होगा। तो वो फियर ऑफ फेलियर सबके दिमाग में होता है। और जो लीडर होता है ना, वो फियर ऑफ फेलियर निकालता है बाकी के दिमाग से। और मैं जब कैप्टन था तो मेरी सोच ये थी कि जो यंग खिलाड़ी जो आएंगे टीम में, उसको ये नहीं सोचना कि कप्तान क्या सोचता है और मीडिया क्या सोचता है, फेल होगा तो क्या होगा। उनके दिमाग को ऐसे ट्रेन करना है कि उनका सिर्फ सोच वो रेड और सफेद गेंद जो बॉलर के हाथ से निकलना है उसको कैसे मारना है। मैं वीरेंद्र सहवाग की कप्तानी की 6 साल 7 साल। वो जब खेलता था जितना खतरनाक था, ग्राउंड के बाहर उससे ज्यादा खतरनाक। आप बोले क्यों? तो वो ओपन करता था, जिस दिन 100 बनाया तो टीम आपकी तो जीत ही गई, क्योंकि इतनी जल्दी 100 बनाता था कि आप जीत जाते। जब आउट होके आ गया और आपके बाजू में बैठा तो बैठ के, और उसके बाद आता था राहुल द्रविड़ 3 नंबर। वीरेंद्र सहवाग कहीं दिखा तो कट मारने का, और राहुल द्रविड़ उसी बॉल को छोड़ने का। तो मेरे बाजू में बैठे बैठे राहुल द्रविड़ 2 बॉल छोड़ा, 3 बॉल छोड़ा, और यहाँ पे वो कट मारे जा रहा है उसको। अरे छोड़ दिया इसको कर। तो आपको थोड़े समय बाद बोला कि यार तू आउट हो गया, तू अब अंदर जा। तो वहां चुपचाप बैठ, क्योंकि आगे मुझे जाके बैटिंग करना है। तो वहां पे भी शॉट लगा था, इधर पे भी शॉट लगा था। बट हमने उसको बदलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपको पता, हमें पता था कि जिस दिन वो खेल गया ऐसे, आपको जिता के लेके जाएगा। तो उसके दिमाग से अगर आप यहाँ बैठे बैठे उसको आप कहते रहो कि यार देख वो भी बड़ा प्लेयर है, वो भी बॉल छोड़ता रहा है, तू छोड़, तो खत्म ही हो जाएगा। तो ये फियर ऑफ फेलियर ना लोगों के दिमाग से निकालना बहुत जरूरी होता है। लीडरशिप में और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैन मैनेजमेंट। आप जितने लोगों के साथ काम करते हो उसको कैसे मैनेज किया जाए, पीपल मैनेजमेंट। हम बहुत तरीके से सोचते हैं कि जो मेरा सोच है वही सोच मेरे टीम में डालना है। जैसे कप्तान सोचता है वैसे ही बाकी 10 खिलाड़ी सोचे, वो गलत है। जो आप कोच बनोगे ना, कप्तान कोच भी मैं बोलता हूं, अगर कोच ऐसा सोचने लगे, आप फुटबॉल में देखते हो एलेक्स फर्ग्यूसन ऐसा च्युइंगम चबाते चबाते इधर से उधर भागता रहता है। आपने वो मोरिनो को देखा है, वो कूदता रहता है। आपने वो जिडान को देखा है जो चुपचाप बैठा रहता है। कोच का जो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए टीम बनाने में, वो किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी स्टूडेंट को अपने तरीके से डेवलप करने की मौका दे। क्योंकि जैसे 5 उंगली कभी एक जैसा नहीं होता, 5 इंसान भी कभी एक जैसा नहीं होता। और मैं कहूंगा एक चीज आपको कहता हूं, जब मैं कैप्टन बना देश का, तो इंडिया का सबसे बड़ा जो ग्रेटनेस है, जो डिफरेंस है, कहेंगे कि हम कहते हैं ना, छोटे से हम सीख के आते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और जब भारत देश का टीम बनता है तो एक आता है पंजाब से,
एक आता है केरला से, एक आता है बंगाल से, एक आता है मुंबई से। इनकी भाषा अलग, इनकी सोचने की तरीका अलग, इनके खाने के तरीके भी अलग। और आप इसी एक ड्रेसिंग रूम में आप इन सबको देखते हो। मेरे कप्तानी के ज़माने में एक खिलाड़ी था, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि सबके कैमराज ऑन है, मुझे पता है, तो नाम नहीं लूँगा। उसको अगर पूछेंगे ना कि तुम रात कल टेस्ट मैच है, तुम्हारी तैयारी कैसी है, कहता है मैं रात को 9:30 बजे सोऊंगा, सुबह उठ के 7:30 बजे ब्रेकफास्ट में ये खाना, 8 बजे बस में मैच के लिए तैयार। नाम पता नहीं। तो अगर आप उसको फॉलो करोगे ना नेक्स्ट दिन, तो देखना कि वो वही करता है। ड्रेसिंग रूम में पहुंचता है, ड्रेसिंग रूम में देखना है कोने में उसका कुर्सी और सब कुछ साफ सुथरा, बैट भी ठीक ठाक, जूता भी ठीक ठाक, जूते के लेसेस भी ठीक ठाक। और एक दूसरा बंदा था, सुबह आपने नींद से उठा, आपको ब्रेकफास्ट जाना है, आप जाके ना उसका दरवाजा खटखटा, अरे तू उठा कि नहीं, आज टेस्ट मैच है। और वही दो बंदे जब ग्राउंड पे उतरते हैं देश के लिए खेलने के लिए, दोनों ही देश के लिए परफॉर्म करते हैं, दोनों ही देश को जिताते हैं। तो मैं ये एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ, आप यहाँ पे जो है वो मुझे बहुत फॉलो करता होगा। तो मैं ये एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों इंसान के चरित्र, दोनों इंसान के सोच, दोनों इंसान के खेलने के तरीके, दोनों इंसान के जिंदगी में आगे बढ़ने के तरीके अलग होते हैं। बट अगर एज अ कोच, एज अ टीचर आप ये चाहोगे कि दोनों एक तरीके से सोचे और एक तरीके से तैयारी हो उनकी खेलने का, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। और जो असली कप्तान, असली कोच, असली टीचर है, उनको ये अडॉप्ट करना है कि एक्स और वाई अलग है, इनको दोनों को अलग तरीके से मुझे डील करना है, लेकिन सक्सेस, परफॉर्मेंस दोनों से ही अपने तरीके से मिलेंगे। तो मैन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट कैन नेवर बी माई वे और हाईवे। और मैं आपको एक चीज, आपने पढ़े होंगे, स्टीव जॉब्स ने एक बहुत बढ़िया चीज कही है। उन्होंने कहा कि यार, यू हायर प्रोफेशनल्स टू टेल यू व्हाट टू डू एंड इट्स नेवर द अदर वे अराउंड। जब आप टीचर होते हैं, आपको आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में आप एक लेवल पे पहुंचते हैं और आपके नीचे जो लोग काम करते हैं ना, हमारे करियर में और हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी कहो, हम चाहते हैं कि जैसा मैं बोलूं वो करें। बट जो बड़े बनते हैं ना, वो जो नीचे है उसका सुनता है और उसका सुन के अडॉप्ट करते हैं अपनी कंपनी में, अपनी प्रोफेशन में, अपनी जिंदगी में। और जो ये अडेप्टेबिलिटी दिखा पाता है, वही आगे जाके उसकी टीम बड़ी टीम होती है, स्ट्रॉन्ग टीम होती है। और दो चीज कहूँगा क्योंकि मुझे कहा गया 20 मिनट बात करोगे, तो 25 मिनट हो गए। दो चीज और कहूँगा आपकी लीडरशिप में। एक तो आपका टैलेंट हुआ, एक हुआ फियर ऑफ फेलियर हुआ, आपके मैन मैनेजमेंट स्किल्स हुए। जो कप्तान है, जो लीडर है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है वो जो जिसके साथ काम करते हैं उसका ट्रस्ट डेवलप करना। क्योंकि क्रिकेट में होता है, जो कप्तान है ना, वो दीवार होता है सिलेक्टर्स और प्लेयर्स के बीच में। और हमारी जो जिंदगी है, हमारी जिंदगी में हम सारे सिलेक्ट होते हैं, हमें सिलेक्शन मिलता है, हमें रिजेक्शन मिलता है। अब दो तरीके की, क्या किसी भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में अब दो तरीके की लीडर के नाते आप दो तरीके की पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हैं। एक तो कोई बंदा आके आपसे पूछे कि यार मैं ड्रॉप क्यों हो गया, आप उसको ये बोल सकते हैं यार तू चिंता ना कर, तू अच्छा है, तेरे पास मौका आएगा, तू इंडिया के लिए फिर खेलेगा। और जैसे ही वो रूम से निकल गया, आप उसको भूल गए। दूसरे तरीके की जो लीडर है, वो उसको बैठाएगा, उससे बोलेगा कि देख तू फास्ट बॉलिंग अच्छा नहीं खेलता, तेरी रनिंग बिटवीन विकेट्स अच्छा नहीं है, तो इसको डेवलप कर और हम फिर तेरे को वापस लाएंगे। और एक खिलाड़ी की ज़िंदगी में ऐसा हुआ, मुझे अभी भी याद है, 1999 में वो ड्रॉप हुआ, मेरे पास आया, उन्होंने मुझे पूछा कि मैं तो आउट हो गया, शायद मुझे मौका मिलेगा नहीं, आगे क्या करें। तो मैं उसको दो चीज़ बोल सकता था, जैसे मैंने कहा कि यार तू जाके खेल, तू अच्छा है, तू फिर आएगा, फिर उसको भूल जा। उसके साथ बैठे, उसको बोला कि तू फास्ट बॉलिंग पे लेट है, तेरी जब पैर चलती है तो स्लो पैर चलता है, तू इस पे डेवलप कर। 2 साल बाद वो बंदा वापस आया
बंदा वापस आया, आप क्या मेरे घर में रहते हो क्या? तो 2 साल बाद जब वो बंदा वापस आया, वो 100% अच्छा खिलाड़ी बन के आया और वो डेब्यू में 100 बनाया साउथ अफ्रीका के सामने। मुझे अभी भी याद है, ब्लूमफोंटेन में डेब्यू में उसने 100 बनाया और शानदार पारी खेली। तब मैं कैप्टन था देश का, तो मेरे पास आया, कहता है दादा मैंने 100 बनाया, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने उसको ऐसे ही पूछ लिया यार कि 2 साल पहले तुझे मैं देखा था, 2 साल बाद देख रहा हूँ, फर्क क्या है? कहता है वो जो डिस्कशन हुई थी ना आपके साथ, वो मेरे लिए सबसे बड़ा आई ओपनर था। और मैं आपको, इसीलिए आपका रेस्पेक्ट अगर इतना था तो इतना हो गया मेरे जिंदगी में, क्योंकि आप मुझे बोल सकते थे कि यार तेरा सब अच्छा है, तू वापस आएगा, वो 2 मिनट का काम है। और मैं जब निकला आप भूल सकते थे। और जब आपने कहा कि मैं तेज बॉलिंग में स्लो हूँ, मेरे पैर अच्छे नहीं चलते, मैं 1.5 साल से उसी पे मेहनत किया जिससे कि मैं आपके वापस आके 100 बना सकूं। तो समटाइम्स एज अ लीडर यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी ट्रूथफुल टू द पीपल हु यू वर्क विथ फॉर देयर डेवलपमेंट। आई टेल यू वन मोर स्टोरी बिफोर आई फिनिश, क्योंकि आधे घंटा हो गया होगा आपके अवार्ड्स लेने। तो जब खिलाड़ी बड़े बनते हैं ना, जब कोई खिलाड़ी एक लंबे समय तक बड़ा बनता है आपकी लीडरशिप टेन्योर में, हर इंसान का करियर, हर इंसान का ग्राफ हमेशा ऊपर नहीं जाता, कोई भी नहीं। बिजनेस में देखो, स्पोर्ट्स में देखो, फिल्म में देखो, पॉलिटिक्स में देखो, हर इंसान का ग्राफ कभी ऊपर नहीं जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जब आपका ग्राफ नीचे आएगा, हर बड़ा प्लेयर के साथ होगा, और उसी समय लीडर का, उसका साथ रहना बहुत जरूरी होता है। ऐसा एक खिलाड़ी था हमारे करियर में, हम ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे 2003 में। आप आ जाओ स्टेज में यार। 2003 में जब हम ऑस्ट्रेलिया गए तो उसको टीम में नहीं लिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि यार ये वहाँ पे उतना अच्छा नहीं करता, वहाँ पे स्पिन नहीं होती, तो क्या किसी दूसरे को लेके जाओ। तो मैं लड़ता गया उसके लिए, लड़ता गया। मेरे कोच जो थे उन्होंने कहा यार छोड़ दो, वो मान नहीं रहा है तो किसी और को ले जाते, एक खिलाड़ी क्या फर्क करने वाला है। मुझे पता था कि अगर उसको छोड़ के गए तो शायद आगे वो देश के लिए और नहीं भी खेल सकता है। तो मैंने कहा नहीं आप जाओ, रात हो गया, आपको नींद आई होगी, मैं उसके बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो उसके नाम आए टीम में। जब नाम आया तो सिलेक्टर ने मुझे कहा कि अगर इसने अच्छा नहीं किया तो पहले तुझे निकालूंगा, फिर उसको निकालूंगा। मैंने कहा ठीक है, 4 महीने बाद बात करेंगे, लंबा टूर था। इंडिया ने बहुत अच्छा खेला उस सीरीज। तो जब चौथे टेस्ट का 5वां दिन था, सुबह मैंने उनसे पूछा कि यार ये टेस्ट तो हम जीत सकते हैं, पर हमारे बॉलर्स थक गए हैं क्योंकि हर टेस्ट 5-5 दिन का गया, गर्मी था, क्या करना है। सिडनी में मुझे अभी भी याद है, तो मुझे अलग ले जाके बोला देखो आज 90 ओवर है, 45 ओवर मैं एक एंड से डालूंगा, आप बाकी 45 ओवर किसी दूसरे को दूसरे एंड से डलवाओ। मैंने कहा यार तू भी तो थकेगा, तू भी तो इंसान है, तू कैसे एक दिन में 45 ओवर डालेगा। तो कहता है कि जब मैं थक जाऊंगा मैं आपको बोलूंगा, आप मुझे 2-3 ओवर ब्रेक दे देना, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। वो सीरीज खत्म हुई, हमने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। उसने उस साल 70 विकेट लिए हैं पूरे साल में, जो जिंदगी में उसने कभी नहीं लिया। वो उससे पहले बहुत बड़ा खिलाड़ी था, उससे पहले बहुत ज्यादा विकेट्स लिए, बट उस साल जितना विकेट्स उसने लिया उससे पहले कभी नहीं लिया। मैं ये स्टोरी आपको इसीलिए कहना चाहता हूं क्योंकि सबके करियर में ना एक खराब टाइम आएगा, और अगर उस आदमी में टैलेंट है, अगर उस आदमी ने परफॉर्मेंस दिया है आपको, तो कभी कभी एज अ लीडर आपको उसका साथ देना बहुत ज़रूरी होता है वापस लाने के लिए, उसके लिए। क्योंकि जब सिलेक्शन कमेटी मीटिंग्स होते हैं, आप डिस्कस करते हो, तो वो बात उसके पास जाता है कि आपका कप्तान आपके बारे में क्या सोचता है। और जब आप अपने कोलीग्स के बारे में, अपने खिलाड़ी के बारे में, अपने स्टूडेंट्स के बारे में सही चीज़ सोचोगे ना, वो भी रिएक्ट सही तरीके से करेगा। वो चौथी टेस्ट तक उसने सीरीज में 30 विकेट ले चुका था ऑलरेडी, बट उन्होंने चौथी टेस्ट की 5वें दिन, जो सबसे गर्म दिन था सिडनी में, मुझे आके बोला कि मैं आपके लिए 45 ओवर डालूंगा और आपको ये मैच जिताऊंगा। क्योंकि उसको पता है
क्योंकि उसको पता है कि जब मेरा नेक लाइन पे था, 1-1.5 महीना पहले जब टीम बन रहा था, नेक लाइन पे था, इसने मेरे लिए खड़ा हुआ है कि इसने मेरे ऊपर फेथ दिखाई है और मुझे इसका अभी फेथ वापस करना है। तो जब बड़े टीम बनते हैं, जब बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, जब बड़े ग्रुप्स बनते हैं ना, ये फेथ से ही बनते हैं, ये रिजेक्शन से हमेशा नहीं बनता। निकाल दो, दूसरे आ जाएंगे, बाहर कर दो, वो हमेशा ऐसे नहीं बनते। तो लीडरशिप का सबसे बड़ा मंत्र, सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स मैं समझता हूँ कि जिस लोगों के साथ आप काम करते हो ना, उस लोगों को आगे ले जाना भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ, बिलीव के साथ। क्योंकि सब गिरेंगे, क्योंकि दुनिया में सब गिरेंगे, आप भी गिरोगे एक दिन। लेकिन अगर आपके अच्छे समय में आपने जिसका साथ दिया है, वो आपको आगे लेके जाएगा आपके बुरे समय में। तो लीडरशिप हमेशा मतलब ये नहीं है कि मेरे पास पावर है, मेरे पास सब कुछ है, इट विल बी आइदर माई वे और हाईवे। द बेस्ट लीडर्स work with their people. The best leaders take people along with them. The easiest thing is in the world is that जब दूसरे की समय खराब हो, उसको उसका साथ छोड़ना और आगे बढ़ना, क्योंकि यार दूसरे खिलाड़ी तो मिल जाएंगे। But the greatest and the best and who remain forever are the ones who carry the people with you. So हमेशा याद रखना, आप यहाँ पे टीचर्स हैं, आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आप उनकी जिंदगी बनाते हैं, हमेशा ये ट्रेनिंग उनके साथ देना है कि अगर बड़ा बनना है, अगर सक्सेसफुल बनना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोगों को साथ लेके चलना। सबके दिन आएंगे, किसी के अच्छे, किसी के बुरे, एक कोई 100 बनाएगा, दूसरा फेल होगा, फिर तीसरा आके 100 बनाएगा। बट जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो सक्सेसफुल खिलाड़ी हैं, वो कभी ना कभी उठ के जरूर आएंगे आपकी जिंदगी में। तो एक चीज हमेशा याद रखना, आप कोचेज हैं, आप टीचर्स हैं, आप लोगों की जिंदगी बनाते हैं, तो आपको जब स्टूडेंट्स को अपने करियर बनाने की सलाह देनी है, तो उनको ये चीज़ ज़रूर सलाह देना है कि यार आपको लीडर बनना है, आपको सिर्फ वन ऑफ नहीं बनना, आपको सिर्फ अच्छा सैलरी कमाने वाला कॉर्पोरेट हेड, एमडी, सीईओ नहीं बनना। आपको ऐसा सीईओ, ऐसा एमडी बनाना है जो इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। वो एडुकेशन बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स में, और जो बड़े होते हैं उसकी करियर बिल्डिंग में, कि आपको ऐसी चीज करना है जिससे कि आप लेगेसी छोड़ के जाओ। MS धोनी को देख ले, जब तक भारतीय क्रिकेट रहेगा तब तक लोग बोलेंगे कि वाइट बॉल क्रिकेट में अगर भारत को किसी ने कोई आगे लेके गया है तो वो MS धोनी है। पिछले 2-3 मैच में आपने देखा वो 7 नंबर पे खेलते, वो तो हम कह सकते थे कि यार मैं 4 नंबर खेलूंगा, मैं MS धोनी हूँ, मैं छक्का मारता हूँ, मैं रन बनाता हूँ, आप मुझे 4 नंबर खेलो। लेकिन वो सबसे मुश्किल स्पॉट पे खेलते हैं 7 नंबर पे, क्योंकि उसको पता है 2 ओवर में अगर 30 बनाना है, और अगर MS धोनी को लीडर बनना है, जो पिछले मैच में उन्होंने 2 ओवर में 30 रन बनाए मुंबई इंडियंस के साथ, वो MS धोनी ही करेगा। तो आप आप बड़े आदमी, आप सक्सेसफुल आदमी तभी बनोगे जब आप मुश्किल काम खुद करोगे, या वो कभी नहीं बनोगे जब मुश्किल के समय आप किसी को बोलोगे चल तू जाके छक्का मार के। तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलने आज। मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपको मिलने का मौका मुझे दिया है, और जो यहाँ बैठ के द्राविड और सहवाग और कुंबले कर रहे थे, आप प्लीज़ कैलकाटा आइए मेरे से मिलने। तो बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके, और पिछले 2 साल से क्लास प्लस की जो फैमिली, क्लास प्लस की जो नेम आगे बढ़ा है, वो आपकी मेहनत से बढ़ा है, आपके एफर्ट से बना है, और आगे भी आपको ये जारी रखना है। आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड दैट पिछले 2 साल से मैं क्लास प्लस के साथ जुड़ा हूँ, और मैं हमेशा मुकुल और भास्कर से पूछता हूँ कि ब्रांड आगे बढ़ रहा है कि नहीं, और सुन के खुशी होती है कि 3-3.5 लाख स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं क्लास प्लस के साथ। और पिछले 3-2 साल में जब ये कोविड हुआ, देश में दुनिया में इतनी इश्यूज हुए, ये ब्रांड आगे बढ़ता गया। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बधाइयाँ, मेरी तरफ से गुड विशेज आपको आगे के लिए, और यही चाहूँगा कि आप इस ब्रांड को एक साथ मिलकर आगे लेके जाए। Ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause for the one and only Mr. Saurabh Ganguly? Come on everyone,
what this is. Come on, let's give them a huge round of applause. That's what I'm talking about. Beautiful. Dada, on the behalf of Class Plus and everyone present here, I would like to thank you for being a part of this celebration, as we call it, and also for sharing your life experiences. As I can recall, दादा ने बहुत ही खूबसूरती से leadership की बात की है. Ladies and gentlemen, I read it somewhere that leadership is not a position, it's a quality that demands responsibility of the vision that you have in mind. And now, ladies and gentlemen, मैं ऐसे ही दो विजनरीज को इस स्टेज पर आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगी. Please welcome the founders of Class Plus, Mukul Rustagi and Mr. Bhaswant Agarwal. And of course, since this is a very special moment as we are giving away awards to all our achievers, I would also like to invite Mr. S. Subramanian, AVP Marketing, onto the stage. Thank you. Now, ladies and gentlemen, we move on to the segment of awards.